Hello, children. This is the platform of the Academy, and today we are going to continue with the chapter that we began that day. That was with the photographer by Stephen Leacock. So let me give you a quick revision as we had read the chapter. So it is about a man who goes to a photographer to get his photograph clicked. Now, when he goes there, first of all, he has to sit for some time and he has to rest because the photographer was busy with some work. After some time, he was called inside, and then the photographer gets ready to take his photograph. Now, when he goes inside the machine of the photograph and begins to see through the man through the lens, he starts pointing out various defects that the man has on his face. So he says, like, your face is not proper, your face is very narrow, and your eyes are not looking good, your ears are not proper. So all these things he keeps on saying one after the another, which is not liked by the narrator or the man who had gone for the photograph. So somewhere we see that the man was not so much declining also the fact. He said that yes, I know that my features are not perfect, because he knew it from before that with the that as he had lived, he had accepted his features as he was. So he said, yes, I know that I am not perfect, but as I am, get my photo clicked. Okay, so finally, after a few agitations and few changes and adjustments, the photographer gets the photo clicked. So after that, he says to the narrator that come to me on Saturday, and that day I will show you your photograph, because I have to make the negatives first and then I have to develop the photograph. पहले negatives बनाने पड़ते थे, फिर photograph बनती है. पहले के ज़माने में जो मोबाइल कैमराज होते थे, वो उनमें रील्स होती थी, तो उनमें उनको डेवलप करना पड़ता था, थोड़ा टाइम लगता था. अब क्या होता है, हम तो कैमराज में तुरंत फोटो खींचते हैं और तुरंत फोटोज आ जाती हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी की बात है ये, तो इस समय फिर ऐसे कैमराज नहीं आते थे. सो द फोटोग्राफर सेज दैट कम टू मी ऑन सैटरडे, आप सैटरडे को आइएगा, उस दिन हम आपको आपकी फोटोग्राफ दिखा देंगे. ओके, ऑन सैटरडे आई वेंट बैक. तो फाइनली सैटरडे आता है और नरेटर जाते हैं अपनी फोटो देखने फोटोग्राफर के पास. द फोटोग्राफर beckoned मी इन. beckon मीन्स कॉल्ड मी. ठीक है, beckon मतलब बुलाना. तो फोटोग्राफर ने उनको अंदर बुलाया. आई थॉट ही सीम्ड क्वाइटर एंड ग्रेवर देन बिफोर. Graver means more serious. So earlier the photographer was somewhere making the and pointing out all the defects on narrator's face, which was not liked by him. So now he sees that the photographer was much serious. पहले से वो ज़्यादा serious था और चुप था, वो कुछ बोल नहीं रहा था एक्स्ट्रा जो narrator को परेशान करे. I think too there was a certain pride in his manner. सो नरेटर को ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा प्राउड फील कर रहा है, शायद इसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी फोटोग्राफ बनाई है नरेटर की, इसलिए कहीं ना कहीं उसको बहुत प्राउड फील भी हो रहा था. He unfolded the proof of a large photograph and we both looked at it in silence. Finally उसने वो जो भी कवर रहा होगा उसको हटाया और जो फोटोग्राफ उसने खींची थी वो फाइनली नरेटर को दिखाई. We both looked at it in silence. दोनों ने बिल्कुल शांत होकर फोटो को देखी, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, नरेटर बस अपनी फोटो देख रहा है और फोटोग्राफर भी अपनी फोटो को देख रहा है. इज इट मी, आई आस्क्ड. तो कुछ ऐसा दिखा नरेटर को उस फोटो में कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने क्या पूछा, इज इट मी, क्या ये मैं हूं. आई आस्क्ड. यस, ही सेड क्वाइटली, इट इज यू, एंड वी वेंट ऑन लुकिंग एट इट. तो फोटोग्राफर ने कहा, हाँ आप ही तो हैं इसमें. तो इसका जब ऐसा उसने कहा तो फिर से नरेटर जो है फोटो को देखने लगे. यानी बेसिकली जो फोटो थी वो नरेटर के एक्चुअल चेहरे से, उनके एक्चुअल फीचर से बहुत डिफरेंट थी. इतनी डिफरेंट थी कि नरेटर को पहचान में ही नहीं आ रही थी कि ये उन्हीं की फोटोग्राफ है. ठीक है, तो फिर उसको देखने रहे फोटोग्राफ को. द आईज, आई सेड हेजिटेटिंगली, डोंट लुक वेरी मच लाइक माइन. तो नरेटर ने शुरुआत किया, उनको जो जो चीजें अच्छी नहीं लगी या अलग लगी उन्होंने बताना शुरू किया. सबसे पहले उन्होंने कहा दी आईज, कि आंखों को देखो. आई सेड हेजिटेटिंगली, थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है, थोड़ा हिचकिचा रहे हैं बोलने में, शायद फोटोग्राफर बुरा मान जाए कि उसकी इतनी अच्छी फोटोग्राफ उसके हिसाब से बहुत अच्छी फोटो है और उस पर वो कमियां निकाल रहे हैं. तो उनका कहना है जो आंखें देखिए, दी आईज,
डोंट लुक वेरी मच लाइक माइन, मेरे तरह नहीं लग रही है आंखें, बहुत अलग लग रही हैं. Oh no, he answered. I've retouched them. So retouch is basically a feature in photographs. We get this in mobile also. मोबाइल में भी आजकल ये फीचर आता है retouch का, जहाँ पे जो फोटोज खिंचती हैं उसका तो हमें retouch दे देते हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट कर देते हैं, तो अपने आप जो मोबाइल जो है वो उसको ये कहते हैं फिल्टर्स वगैरह लगाकर और ज्यादा अच्छी बना देता है. तो दैट इज retouch. तो उसने कहा यस आई नो आई हैव रीटच देम. हाँ, थोड़ी आईज अलग होंगी क्योंकि मैंने उसमें रीटचिंग की है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है. दे कम आउट स्प्लेंडेडली डोंट दे. स्प्लेंडेड मतलब ब्यूटीफुली. अच्छा, फोटोग्राफर को अपनी फोटोग्राफी बहुत अच्छी विश्वास है, बहुत अच्छी लग रही है उसको अपनी फोटो, तो इसलिए उसने क्या कहा, स्प्लेंडेडली यानी ब्यूटीफुली, कि देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है आंखें आपकी रीटच के बाद. डोंट दे, आपको नहीं लगता क्या? फाइन आई सेड. उन्होंने कहा ठीक है, कुछ बहुत खास नहीं है. बट श्योरली माई आईब्रोज आर नॉट लाइक दैट. तो उन्होंने आंख के लिए तो कुछ नहीं बोला, लेकिन आईब्रोज के लिए उन्होंने कहा कि दे डोंट लुक लाइक माइन, कि ये आईब्रोज तो मेरे जैसी बिल्कुल नहीं है, ये आपने बिल्कुल अलग ही कर दिया है फोटो में. नो सेड द फोटोग्राफर with a momentary glance at my face. Glance means a serious look. किसी को सीरियसली देखते रहना लंबे समय तक बिना कुछ बोले, दैट इज कॉल्ड एज ग्लैंस. तो फोटोग्राफर ने कहा नहीं नहीं, द आईब्रोज आर रिमूव्ड. तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, जो आपकी एक्चुअल आईब्रोज थी वो उनको मैंने पूरा का पूरा हटा दिया, और यहां पर जो आईब्रोज मैंने लगाई हैं वो आर्टिफिशियली यानी पिक्चर क्या कहते हैं फिल्टर्स के थ्रू और एडजस्टमेंट्स करके वो आईब्रोज अलग से मैंने लगाई हैं. We have a process now, the Delphi, for putting in new ones. तो उसने थोड़ा डिस्क्राइब किया और उसने कहा कि अब एक नया तरीके का प्रोसेस आ गया है फोटोग्राफी में, और द नेम ऑफ द प्रोसेस इज डेल्फाइड. तो उसने कहा इसमें क्या होता है दैट वी व्हाटएवर फीचर वी डोंट लाइक, जो भी फीचर हमको नहीं अच्छा लगता उसको हम हटा देते हैं और नया लगा देते हैं. तो हमें आपकी आईब्रोज नहीं अच्छी लगी तो मैंने उनको हटा दिया और उसकी जगह एक अच्छी आईब्रो लगा दी जो आपके फेस को सूट कर रही थी. You'll notice here where we've applied it to carry the hair away from the brow. I don't like the hair low on the skull. तो उसने कहा कि गौर से देखिए फोटोग्राफ में, अगर आप ध्यान देंगे, we have applied it to carry the hair away. तो हम लोगों ने वहां पे एडिटिंग की है और एडिटिंग करके उतने दूर हेयर को हटाया है, और उस हेयर को हटाने के बाद वो प्लेन हो गया तो वहां पे न्यू आईब्रोज अटैच कर दी है. और क्यों किया उसने ऐसा, उसका रीजन भी दे रहा है. I don't like the hair low on the skull. Skull means the face. तो उसका कहना है कि मुझे नीचे आईब्रो नहीं अच्छी लगती, यानी कि बहुत चौड़े मत्थे मुझे नहीं अच्छे लगते. तो उसने कहा कि योर फेस वाज लाइक दैट, आपके जो आईब्रोज थे बहुत ही नीचे थे तो मुझे वो अच्छे नहीं लगे, तो इसलिए मैंने उनको हटा दिया और आपके आईब्रोज की लोकेशन को चेंज करके एक नई आईब्रो दे दी. ठीक है. ओह यू डोंट यू, आई सेड. तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ नरेटर को कि उसने ऐसा कुछ किया है. उसने कहा ओह यू डोंट यू मतलब नहीं, आपने ऐसा नहीं किया, सही में ऐसा किया है क्या, डोंट यू, आई सेड. नो, ही वेंट ऑन, आई डोंट केयर फॉर इट. तो उसने कहा नहीं, बहुत कुछ ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, और जो भी है वो फोटो को बेटर बनाने के लिए था. ठीक है, तो आई डोंट केयर कि आईब्रोज नहीं लगा, पुरानी हट गई, नहीं लग गई, मुझे बस परफेक्ट फोटोग्राफ से मतलब है. आई लाइक टू गेट द हेयर क्लियर बैक टू द सुपरफिसीज एंड मेक आउट अ न्यू ब्रो लाइन. सुपरफिसीज मतलब द सरफेस, द फेस. तो उसने कहा कि मुझे ये ज्यादा बेटर लगा कि ये हेयर को हटा दिया जाए और वहां पर एक नई आईब्रो लगा दी जाए. आई लाइक टू गेट द हेयर क्लियर बैक टू द सुपरफिसीज एंड मेक आउट अ न्यू ब्रो लाइन. तो एक नई आईब्रो की लाइन उसने वहां पर बना दी. तो पूरा उसने डिस्क्राइब कर दिया कि ये मुझे नहीं अच्छी लग रही थी तो मैंने चेंज कर दी और न्यू आईब्रो आपको दे दी. तो नरेटर ने कहा ठीक है, अब क्या ही बोल सकते थे वो. फिर वो आगे बढ़े और उन्होंने थोड़ा गौर किया फोटोग्राफ पे. सेकेंड थिंग व्हाट ही सेड, व्हाट अबाउट द माउथ. आई सेड विद अ बिटरनेस दैट वाज लॉस्ट ऑन द फोटोग्राफर, इज दैट माइन. अब जो नेक्स्ट चीज उनको अच्छी नहीं लगी वो था उनका माउथ, ये वाला एरिया. ठीक है, तो उन्होंने कहा व्हाट अबाउट द माउथ, ये माउथ में क्या किया तुमने.
But I said with a bitterness. Bitterness मतलब in a very serious type of tone, कुछ ऐसा सीरियसनेस जो शायद सामने वाले को खराब लग जाए, ठीक है, इन अ बिटर मैनर जिसे बोलते हैं। सो थोड़ी बिटरनेस थी उनकी बात में, क्योंकि उन्हें वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो अल्टीमेटली एक टाइम के बाद कोई भी होगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि इसने तो पूरी फोटो ही बदल दी मेरी। तो वही फ्रस्ट्रेशन उनकी निकल रही है, और वो कहते हैं माउथ का क्या, एंड आई वाज लॉस्ट ऑन द फोटोग्राफर, इज दैट माइन। कहते हैं क्या मेरा माउथ है ये तुमने यहाँ फोटोग्राफ में लगाया है? इट्स एडजस्टेड अ लिटिल, ही सेड। तो फोटोग्राफर ने कहा, क्या कहा? यस इट्स एडजस्टेड अ लिटिल, हाँ मैंने थोड़ा सा इसको भी एडजस्ट किया है, पहले से चेंज किया है। योर्स इज टू लो, आई फाउंड आई कुडंट यूज इट। तो उसने क्या कहा, अब माउथ के पास लिए भी उसके पास जस्टिफिकेशन था। उसने कहा आपका जो माउथ था वो आपके फेस से बहुत नीचे था, ठीक है, बहुत लो, इट वॉज टू लो। आई फाउंड आई कुडंट यूज इट। तो उसने कहा मुझे वो आपका चेहरा जब फोटो मैंने देखी तो मुझे ये समझ में आया कि आई कुडंट यूज इट, यानी कि मैं उसे फाइनल फोटोग्राफ में नहीं डाल सकता, क्योंकि आपका माउथ जो है वो चेहरे को और खराब लगा कर रहा था। इट वॉज टू लो, बहुत ही नीचे था, बहुत लॉन्ग लग रहा था आपका चेहरा, तो इसलिए मैंने माउथ को थोड़ा सा ऊपर कर दिया, थोड़ा उसमें भी एडिटिंग कर दी, ठीक है, वो भी एक्सेप्टेबल हो गया। द ईयर्स दो, आई सेड, strike me as a good likeness, they're just like mine, is it me? So इस अब वो नरेटर कहते हैं ईयर्स के बारे में कि ईयर्स को देखो, द ईयर्स दो, आप मेरे कान देखो जरा सा, स्ट्राइक मी एज अ गुड लाइकनेस, दे आर जस्ट लाइक माइन, इज इट मी? तो उसने कहा कि हाँ मुझे थोड़े से ईयर्स भले ठीक लग रहे हैं, क्या ये बार ये ईयर्स मेरे ही हैं कि इनको भी चेंज किया है तुमने, ठीक है। स्ट्राइक मी एज अ गुड लाइकनेस मतलब आई लाइक इट अ लिटिल बिट, मुझे थोड़ा ईयर अच्छा अपना ठीक लग रहा है, अब ये मेरा है कि ये भी तुमने एडिट कर दिया है। यस सेड द फोटोग्राफर थॉटफुली, दैट्स सो। उसने कहा हाँ हाँ ईयर तो आपके ही है, ईयर मैंने नहीं चेंज किया, ठीक है, दैट्स सो, बट आई कैन फिक्स दैट ऑल राइट इन द प्रिंट। तो फोटोग्राफर कहता है कि अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम लग रही है, आपको ईयर भी कम अच्छा लग रहा है, तो बताइए, आई हैव द प्रिंट, मेरे पास भी ब्लू प्रिंट है, आई विल मेक द चेंजेस, मैं फिर से चेंज कर दूंगा। वी हैव अ प्रोसेस नाउ द सल्फाइड फॉर रिमूविंग द ईयर्स एंटायरली। तो अब वो बताता है कि हम लोग के पास बहुत डेवलपमेंट हो गई है, अब बहुत हम लोग एडवांस हो गए हैं, सो वी हैव वन मोर प्रोसेस, हमारे पास एक और प्रोसेस भी है। जैसे डेल्फाइड वाज फॉर आईज, वैसे वी हैव सल्फाइड फॉर ईयर्स। तो इस सल्फाइड की हेल्प से हम लोग ईयर्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। एंड फॉर रिमूविंग द ईयर्स एंटायरली, यस, उसने कहा सल्फाइड की हेल्प से पूरा का पूरा कान ही हम लोग हटा देते हैं, एंड इन प्लेस ऑफ दैट वी पुट अ न्यू अ बेटर लुकिंग ईयर। आई सी एफ, तो उसने कहा मैं देखूंगा, अगर ऐसा हो सकेगा तो आई विल मेक द चेंजेस, बिना उनसे पूछे कि आप चेंजेस कराना चाहते हैं कि नहीं। सो फोटोग्राफर वाज सो मच ऑब्सेस्ड विद हिज नॉलेज, विद हिज टैलेंट, वो इतना ऑब्सेस्ड था अपने टैलेंट से, लोगों के चेहरे को परफेक्ट बनाने के टैलेंट से, कि उसे ये बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता था कि फोटोग्राफ जो नरेटर है या जो फोटो खिंचवाने आया है, जो कस्टमर है, वो चेंजेस चाहता भी है कि नहीं चाहता है, उससे इससे कोई मतलब नहीं है। ही इज जस्ट गोइंग ऑन विद हिज टेक्निक्स, विद हिज एडजस्टमेंट, एंड टू जस्ट मेक अ परफेक्ट photograph, whether thinking that the person whose photograph is it, वो उन चेंजेस को लाइक करता है कि नहीं, उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे जो सही नहीं लगेगा वो उस पर्सन की फोटो के फेस से हटा देगा, ठीक है। एंड ही फील्स वेरी प्राउड आल्सो, वेरी मच यस गुड आल्सो इन इट। तो फिर उसने ये बता दिया कि मैं कान भी चेंज कर दूंगा। देन व्हाट हैपेंड, लिसन, आई इंटरप्टेड मतलब स्टॉप्ड इन बिटवीन। तो उसने कहा कि सुनो, किसने, नरेटर ने, लिसन मेरी बात सुनो, ड्रॉइंग माई सेल्फ अप एंड एनिमेटिंग माई फीचर्स टू द फुल एक्सटेंट एंड स्पीकिंग विद अ विदरिंग स्कॉर्न दैट शुड हैव ब्लास्टेड द मैन ऑन द स्पॉट। ड्रॉइंग माई सेल्फ अप मतलब थोड़ा अपने आप को उन्होंने ऊपर उठाया, या थोड़ा सा मतलब पुल अप किया, यानी कि हिम्मत इकट्ठे करी बोलने की। ड्रॉइंग माई सेल्फ अप एंड एनिमेटिंग माई फीचर्स, और अपने फीचर्स को थोड़ा एडजस्ट करते हुए, मतलब चेहरे को थोड़ा एक्सप्रेशंस को देखते हुए, बनाते हुए, थोड़ा गुस्सा वाला, टू देयर फुल एक्सटेंट
एंड स्पीकिंग विद अ विदरिंग स्कॉन, स्कॉन मीन्स टू स्कोल्ड, किसी को डांटना, ठीक है। तो अब उन्हें बहुत गुस्सा, फ्रस्ट्रेट हो गया, बिल्कुल गुस्सा हो गया नरेटर कि इसने तो पूरा मेरा फेस ही बदल दिया। तो पूरा वो एक्सप्रेशन बनाते हैं एंगर वाला, और क्या कहते हैं, हाँ, वन मोर थिंग दैट शुड हैव ब्लास्टेड द मैन ऑन द स्पॉट, सो ही सेड दैट आई वाज सो मच इन एंगर। नरेटर कहते हैं कि वो इतने गुस्से में थे कि अगर उस समय कुछ वो क्या कहते हैं, ऐसा हो सकता था कि शायद उनकी बात से जो मैन ऑन द स्पॉट थे, यानी कि जो फोटोग्राफर था, वो शायद ब्लास्ट हो जाता। इतना ज्यादा गुस्सा, इतना ज्यादा एंगर उनके अंदर भर चुका है, ठीक है। We are speaking with a withering scorn that should have blasted the man on the spot. Listen, I came here for a photograph, a picture, something which, mad though it seems, would have looked like me. उनका कहना है कि लिसन, मैं सुनो, मैं तुम्हारे पास आया था अपनी फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए, इस उम्मीद से कि शायद जो फोटोग्राफ मेरी बनेगी वो कुछ हद तक तो मेरे जैसी दिखेगी। Here basically speaking in a sarcastic way, sarcastic में बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसमें क्या किया, फोटोग्राफर ने पूरा का पूरा चेहरा ही चेंज कर दिया। So he says that मैं इसलिए यहाँ पर आया था कि शायद मेरी कोई ऐसी फोटोग्राफ खींचेगी जो कुछ हद तक तो मेरे जैसी दिखेगी, ठीक है। Mad though it seems, mad though it seems मतलब कि, लेकिन उनका कहना है कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल पागलों वाली बात है, अब अपनी एग्जैक्ट फोटो पा जाना, क्योंकि तुम लोग हर चीज में क्या कर देते हो, इतना ज्यादा एडिटिंग कर देते हो। I wanted something that would depict my face as heaven gave it to me. Heaven basically here means the nature, the God. So he says कि मैं ऐसा चाहता था कि तुम मुझे ऐसा दिखाओ, मेरा फेस ऐसा बनाओ फोटोग्राफ में, that should look exactly as I am, जो बिल्कुल जैसे हम हैं बिल्कुल वैसा दिखे, जैसा मुझे ऊपर वाले ने दिया है, जैसा मुझे नेचर ने, हेवन ने दिया है, ऐसा फेस मुझे चाहिए था फोटो में। Humble though the gift may have been, humble though the gift may have been, तो जैसा भी उन्होंने दिया है मुझे, humble, beautiful और less beautiful जो भी है, I wanted it as it is, मुझे वैसे का वैसा ही चाहिए था, ठीक है। I wanted something that my friends might keep after my death to reconcile them to my loss. Reconcile मतलब to make them remember. उनका कहना है कि मैं इसलिए आया था कि जब इस फोटोग्राफ को मेरे जाने के बाद, आफ्टर माय डेथ, जब मेरे फ्रेंड्स देखें तो उन्हें उस फोटोग्राफ को देखकर मेरी याद आए। अब तुम अगर ऐसी फोटो बना दोगे जो मुझसे सी दिखेगी ही नहीं, जो बिल्कुल मुझसे अलग हो जाएगी, तो मेरे फ्रेंड उसे देखकर मुझे कैसे याद करेंगे, ठीक है। सो ही सेज कि मैं तो जैसा था मैं वैसी फोटो चाह रहा था, मेरे फ्रेंड जैसा मुझे देखते हैं वैसे ही ना मुझे देखेंगे, वैसे ही मुझे याद करेंगे, तो फोटो भी वैसी ही होनी चाहिए। तो कैसे तुमने इतनी एडिटिंग कर दी फोटो में? इट सीम्स दैट आई वॉज मिस्टेकन, तो उनका कहना है शायद मेरी गलती थी कि मैंने ये सोच लिया कि तुम मेरी एज इट इज फोटोग्राफ बनाओगे। वॉट आई वॉन्टेड इज नो लॉन्गर डन, उनका कहना है कि जो मुझे चाहिए था, जो मुझे जिस उम्मीद से मैं आया था, शायद अब वो चीज होती ही नहीं है, यानी कि अब ओरिजिनल फोटोग्राफ्स खींची ही नहीं जाती, अब इतनी एडिटिंग कर दी जाती है कि the face of the person changes. What I wanted is no longer done, जो मैं चाहता था शायद अब वो होता ही नहीं है। Go on then with your brutal work. Take your negative or whatever it is you call it, dip it in sulfur, sulfide, bromide, oxide, cowhide, anything you like. तो उनका कहना है Go on then with your brutal work. तुम अपने इस brutal मतलब emotionless, बिना तुम्हें कस्टमर्स के इमोशंस की कोई चिंता ही नहीं है, तुम्हें बस अपने काम से मतलब है, तो इसे गो ऑन विद योर ब्रूटल वर्क, लगे रहो अपने काम में, जो ये तुम्हारा इमोशनलेस वर्क है। टेक योर नेगेटिव और व्हाटएवर इज इट यू कॉल इट, जो रील्स की नेगेटिव होती है, जो रील्स होती है उनको डिप करना होता था और उससे एक परफेक्ट वो डेवलप होकर फोटो बनती थी। तो उन्होंने कहा अपना नेगेटिव तुम ले जाओ, ठीक है, एंड डिप इट, और उसको डिप करो जिसमें चाहो उसमें डिप करो, सल्फाइड में, ब्रोमाइड में, ऑक्साइड में। तो बेसिकली ही सेड डेल्फाइड एंड सल्फाइड, लेकिन यहाँ वो काफी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, तो ऐसे राइमिंग वर्ड्स में जो जो उनको मुंह में आते गए, ठीक है, ब्रोमाइड, ऑक्साइड, उन्होंने कहा जो जो तुम्हारे पास है तुम सब क्या कहते हैं उसमें फीचर्स लगाओ, वो तुम टेक्निक्स लगाओ। काउहाइड, उन्होंने उसी के राइमिंग में एक और वर्ड बोल दिया
Cow hide. Cow hide basically is the animal, the skin of the animal of the cow. तो he says कि जिसमें तुम्हें डिप करना है उसमें डिप करो. Anything you like. Remove the eyes, correct the mouth, adjust the face, restore the lips, reanimate the necktie, and reconstruct the waistcoat. उन्होंने कहा जो तुम्हारा मन है जैसे चाहो वैसे तुम एडिटिंग करो. ये फ्रस्ट्रेट होके बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं. ठीक है, आंखें हटा दो, माउथ करेक्ट कर दो, फेस को एडजस्ट कर दो, लिप्स को रिस्टोर कर दो, कुछ और ही बना दो. रीएनिमेट द नेक टाई, नेक के पोर्शन को रीएनिमेट कर दो, चेंज कर दो, एडजस्टमेंट कर दो. एंड रिकंस्ट्रक्ट द वेस्ट कोस्ट, और पूरा का पूरा जो वेस्ट का एरिया है, वेस्ट का उसे ही चाहो तुम चेंज कर दो. जो मन में आए, you can do whatever you want. Coat it with an inch of gloss, shade it, emboss it, gild it. उनका कहना है कि उसके बाद तुम्हारा उससे भी मन ना भरे और तुम्हें एडिटिंग का मन करे तो कोट कर दो उसे. इंच ऑफ ग्लॉस, ग्लॉस इज बेसिकली यूज फॉर मेकिंग एनीथिंग लुक मोर शाइनियर, कुछ और चमकदार दिखने के लिए ग्लॉस लगाते हैं. तो उनका कहना चाहो तो उसके ऊपर 1 इंच ग्लॉस लगा दो. ठीक है, शेडिंग कर दो उसके ऊपर. एम्बॉस इट मतलब और उस पर डेकोरेशंस कर दो और उसमें कॉन्टूर्स वगैरह और बाकी चीजें लगा दो. गिल्ड इट, गिल्ड मतलब कवर इट विद गोल्डन स्पार्कल, उसे और गोल्डन कर दो और रॉयल बना दो. टिल इवन यू एक्नॉलेज दैट इट इज फिनिश्ड. और ये तब तक तुम करते रहना. देखो टॉन्ट वे में बोल रहे हैं, सरकास्टिक में कह रहे हैं वो. एंड कीप ऑन डूइंग इट, तब तक करते रहना टिल द टाइम यू फाइनली एक्नॉलेज इट. एक्नॉलेज मतलब एक्सेप्ट इट. और ये तब तक करते रहना, ये चेंजेस, ये एडिटिंग्स, ये फिल्टर्स, ये जब तक लगाते रहना तब तक कि तुम उसे परफेक्ट ना मान लो, उसे एक्सेप्ट ना कर लो. तुम्हारी जो डेफिनेशन है परफेक्ट फोटोग्राफी की, परफेक्ट फोटोग्राफ की, जब तक तुम्हें वो अचीव ना हो जाए तब तक तुम जो उसमें चाहो यू कैन कीप ऑन डूइंग टिल द टाइम इट इज फिनिश्ड. उनका कहना है जब तक वो खत्म ना हो जाए. Then when you have all that, done all that, उनका कहना है कि फिर जब तुम ये सब काम कर लेना, keep it for yourself, उसको अपने लिए रख लेना, and your friends, और अपने फ्रेंड्स के लिए. ठीक है, पूरी अपनी फोटोग्राफ बनाकर कंप्लीट करके उसको अपने लिए ही तुम रख लेना, अपने फ्रेंड्स के लिए रख लेना. They may value it, to me it is but a worthless bauble. उनका कहना है कि उनके लिए वैल्यूबल होगा तो तुम उनके लिए रख लेना, अपने लिए रख लेना. बट फॉर मी इट इज अ वर्थलेस बॉबल. बॉबल मतलब ऑफ यूजलेस, जो किसी काम का नहीं होता, वेरी स्मॉल थिंग. तो उनका कहना है कि बट मेरे लिए तो ये फोटोग्राफ जो तुम बनाओगे वो क्या होगी, बिल्कुल वर्थलेस. इट विल बी ऑफ नो यूज, मेरे किसी काम की नहीं होगी. आई ब्रोक इनटू टीयर्स एंड लेफ्ट. एंड फाइनली he was so much full of emotion, इतना ज्यादा वो इमोशन से भर जाते हैं इस बात पर कि फाइनली उनके आंसू निकल आते हैं नरेटर के. एंड देन ही फाइनली लीव्स द स्टूडियो. ठीक है, सो दिस इज दिस स्टोरी. आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड what all it was teaching about. So what is the moral behind this story is that in this generation of Snapchat, Instagram, filters, and all the various social networkings that everybody does, I should say, the obsession that people have is to look perfect. Everyone wants to look perfect. They try all the kinds of adjustments that are given, all the editing techniques that are there on the mobile to make their face look perfect. And sometimes they go to that extent that they don't even realize that the natural and actual identity, the actual features that they had, they are gone. So what it shows the obsession that we have with obsession of looking perfect, which is not a good thing. सब कोई, हर इंसान ऑब्सेस्ड है, उसे परफेक्ट लगना है, गुड लगना है. उसके जो भी फीचर्स कम अच्छे हैं वो उनको छुपा कर, उनको हटा कर परफेक्ट बनाना चाहता है. ठीक है, बट ऐसा करने से क्या होगा? क्या ऐसा करने से हमारा एक्चुअल फेस बदल जाएगा? नो. और ये तो ठीक है ही है एक चीज. एंड वन मोर थिंग इज देयर दैट द पोएट, द नरेटर here wants to tell us that the actual beauty
is not in the face, but the actual beauty is in the character of the man, or the woman. So it is the emotions, it is the nature that you carry inside you that matters in the outside world, and not just your face. ठीक है. So this obsession of today's generation also with looking perfect is not something that should be acceptable. We have to accept ourselves as we are, and then only we can show our true identity. Okay, so this was all about this story. I hope you liked it. Just go through the chapter again, and if you have any doubt, you can ask me in the comment section. Okay, with this we end today's lecture. I hope you all enjoyed it. Thank you.